Hello, listening friends. प्रिय श्रोता मित्रों, नमस्कार। We are delighted that you tuned in again. हमें खुशी है कि आप आज फिर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। We have been going through a series of messages from the life of Abraham. हम अब्राहम के जीवन से संदेशों की एक श्रृंखला को देख रहे हैं। And I want to begin by saying that man's natural way of dealing with sin is to try to cover it up. और मैं यह कहते हुए शुरू करना चाहता हूं कि मनुष्य का पाप से निपटने का प्राकृतिक तरीका है पाप को ढांपने की कोशिश, rather than confessing it and repenting of it. बजाय इसके कि उसे मान ले और पछतावा करे। Even the man Abraham, who was called God's friend, यहाँ तक कि वह आदमी अब्राहम, जिसे परमेश्वर का मित्र कहा गया, when he turned to political expediency, ended up not only lying but trying to cover up his sin. जब वह राजनीति के योग्य हुआ तो न केवल उसने झूठ बोला बल्कि अपने पाप को ढांपने की कोशिश भी की। In the last message, we saw Abraham leaving Haran for Canaan in obedience to God's original command. अपने पिछले संदेश में हमने देखा कि अब्राहम परमेश्वर की प्रथम आज्ञा को मानते हुए हारान को छोड़ कनान के लिए निकल पड़ा। This happened after 6 years of a stagnant stage in his life. और ये 6 साल के शिथिल जीवन के बाद हुआ। Why? क्यों? Because of his murky obedience. क्योंकि उसका आज्ञा पालन अपूर्ण था। In Genesis 12:6, we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the oak of Moriah. उत्पत्ति 12 अध्याय के 6 पद में हमने देखा कि अब्राहम शेकेम और मोरे के बलूत के पेड़ तक गया। The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both. शेकेम और मोरे शब्दों का अर्थ है शक्ति और निर्देश, और अब्राहम को दोनों की आवश्यकता थी। At this point you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God. इस समय आप कह रहे होंगे, चलो अंततः उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह मान लिया। Yes and no. हाँ या ना? Abraham gets into Canaan and he gets a surprise. अब्राहम कनान में प्रवेश करता है और चकित होता है। When Abraham and company arrived in the land of Canaan, जब अब्राहम और उसका समूह कनान देश में पहुंचा, they held a reservation for the land. उन्होंने जमीन का आरक्षण कर लिया। And that reservation had been confirmed by the highest authority possible. और यह आरक्षण किसी उच्च अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गया था। God himself. यह सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर स्वयं था। But when they got there, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, at verse 6 of Genesis 12, उत्पत्ति 12 अध्याय के 6 पद में, there was a surprise. वे चकित हुए। No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan. बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें दिखाई दे रहा था कि पूरे कनान में कोई खाली स्थान नहीं है। The Canaanites were there. कनानी लोग वहां थे। God had not said anything about the Canaanites. परमेश्वर ने कनानियों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। And right at that point, Abraham's faith is about to be tested. और अब यहाँ पर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुने। The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems. यह तथ्य कि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी, Or difficulties or adverse circumstances. या कठिनाइयां या विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। The fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptation. यह तथ्य कि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परीक्षाओं का अनुभव नहीं करेंगे। In fact, that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience persecution. बल्कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र बिंदु में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सताव का अनुभव नहीं करेंगे। I looked in vain in all 4 Gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bed of roses or trouble-free life. चारों सुसमाचारों में मैंने ढूंढा, लेकिन सब व्यर्थ निकला। एक भी स्थान पर यह लिखा हुआ नहीं मिला कि यीशु मसीह ने फूलों की सेज या परेशानी मुक्त जीवन देने का वादा किया हो।
Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7. अब हम उत्पत्ति की पुस्तक में वापस आते हैं और 6 पद के बाद 7वां पद आता है। While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites. अब्राहम ने सिर खुजलाते हुए परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, आपने मुझे कनान में जाने को तो कहा, लेकिन आपने मुझे कनानियों के बारे में नहीं बताया। In Genesis 12:7, the Bible said, उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 पद में बाइबल कहती है, The Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुआ और कहा, यह देश मैं तुम्हारी संतान को दूंगा। इसलिए उसने परमेश्वर के लिए वहां पर एक वेदी बनाई जहां परमेश्वर प्रकट हुआ था। That is the way God works. परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। He reassures us right at the time when we are baffled and confused. जब हम घबराते और व्याकुल होते हैं तो परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं। He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt. वह हमारे संदेह और अनिश्चितताओं के बीच हमें तसल्ली देता है। He reassures us right in the midst of our fear and anxiety. डर और चिंता के बीच वह हमें तसल्ली देता है। He reassures us right in the midst of our puzzlement. व्याकुलता की अवस्था में वह हमें तसल्ली देता है। He comes in and affirms his promises. वह आता है और अपने वायदों की पुष्टि करता है। At that point of Abraham's confusion, God said to him, जब अब्राहम व्याकुल था, परमेश्वर ने उससे कहा, To your descendants I will give this land. मैं यह देश तुम्हारी संतान को दूंगा। Abraham, it is all yours, my friend. अब्राहम, मेरे दोस्त, यह सब तुम्हारा है। But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort? पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर की तसल्ली भी हमें शांति नहीं देती? Sometimes in the midst of your puzzlement, the Lord's assurance does not comfort you. कभी कभी व्याकुलता के बीच भी परमेश्वर की तसल्ली हमें आराम नहीं देती। Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance. अब्राहम की व्याकुलता परमेश्वर की तसल्ली के बावजूद दुगनी हो गई। God promised Abraham a son. परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा देने का वायदा किया। Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren. उसके पास न केवल पुत्र नहीं है, पर वह बहुत बूढ़ा है और उसकी पत्नी सारा भी पुत्र उत्पन्न करने के योग्य नहीं है। And now God tells Abraham that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham. और अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि कनान देश जो खूंखार लोगों से भरा है, वह तुम्हारा है। Listening friends, do you see this point? प्रिय श्रोता मित्रों, क्या आप इस विषय को समझ पा रहे हैं? Sometimes your problem may be too big for you to handle. कभी कभी आपकी समस्या इतनी बड़ी होती है कि आप उसे संभाल नहीं सकते हैं। Even when you are trying to appear strong and resilient. यहाँ तक कि जब आप शक्तिशाली हैं और कुछ करने के लिए उत्सुक हैं। But it is not too big for God. And if you are in His perfect will, लेकिन यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आप उसकी पूर्ण इच्छा में हैं। what God may be waiting for is your repentance and surrender. तो शायद परमेश्वर आपके पश्चाताप और समर्पण का इंतजार कर रहा हो। What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength. परमेश्वर शायद इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप स्वेच्छा से अपनी शक्ति पर निर्भर होना छोड़ दें। What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade. परमेश्वर शायद इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप स्वेच्छा से बाहरी दिखावे को त्याग दें। And Abraham does. और अब्राहम ऐसा ही करता है। So Abraham pitched his tent and built an altar. इसलिए अब्राहम ने अपना तंबू लगाया और एक वेदी बनाई। When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following. जब आप अब्राहम के जीवन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप निम्न बातों को देखेंगे। When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar. जब भी अब्राहम परमेश्वर की इच्छा का केंद्र बिंदु बना रहा तो उसने तंबू लगाया और वेदी बनाई। Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling.
अब्राहम का तंबू उसके अस्थायी निवास का प्रतीक है। The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions. वह तंबू इस बात का प्रतीक है कि वह भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा में व्यस्त नहीं था। The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage. वह तंबू इस बात का प्रतीक है कि वह एक तीर्थ यात्रा पर था। The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will. वह तंबू इस बात का प्रतीक है कि वह परमेश्वर की इच्छा से बंधा हुआ है। The tent is a symbol that he is ready for the master's call. वह तंबू इस बात का प्रतीक है कि वह अपने मालिक की बुल्लाहट के लिए तैयार है। You may ask, wait a minute, didn't everybody live in a tent in those days? शायद आप कहेंगे, एक मिनट रुकिए, क्या उन दिनों में सभी लोग तंबुओं में नहीं रहते थे? Not at all. बिल्कुल नहीं। Those who were permanently settled built with rocks and stones. जो लोग स्थायी रूप से मकान बनाते थे वे ईंट और पत्थर का प्रयोग करते थे। But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life. लेकिन अब्राहम का तंबू उसके अस्थायी जीवन को दर्शाता है। The altar was built of stone, indicating the durability of his fellowship with God. वह वेदी पत्थरों से बनाता था और यह इस बात का संकेत था कि उसकी संगति परमेश्वर के साथ स्थिर है। In the Bible, there are three purposes for which an altar is built. बाइबल में वेदी बनाने के 3 उपयोग बतलाए गए हैं। First, पहला, it is the place of meeting between God and his people. यह परमेश्वर और उसके लोगों के मिलने का स्थान है। Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God. इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू और कई अन्य लोगों ने परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए वेदी बनाई। Secondly, दूसरा, it is a place of sacrifice. ये बलि देने का स्थान है। They sacrificed bulls, goats, and lambs on the altars that they built, and later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice. वे वेदी पर बकरी और भेड़ की बलि चढ़ाते थे, परंतु बाद में अब्राहम से कहा गया कि वह अपने पुत्र की बलि चढ़ाए। The third purpose for building an altar is to be the place of prayer. वेदी का तीसरा उद्देश्य है प्रार्थना का स्थान। In Revelation 8:3 and 4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God. प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 3 पद से 4 पद तक हमें बताया गया है कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर की वेदी में सुगंधित धूप के समान है। Let me ask you a question, my listening friend. श्रोता मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you have an altar? क्या आपके पास एक वेदी है? Do you have a place where you meet God on a regular basis? क्या आपके पास एक ऐसा स्थान है जहाँ आप निरंतर परमेश्वर से मुलाकात करते हैं? Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord? क्या आपके पास ऐसा स्थान है जहां आप परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं? Do you have a place where you offer intercession before God? क्या आपके पास ऐसा स्थान है जहां आप दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis उत्पत्ति 12वें अध्याय की 9वीं आयत से अंतिम आयत तक gives us a clear example of how a man of God can get out of the will of God and start the downhill descent. यहाँ स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर पतन की ओर लुढ़क जाता है। Verse 9 to the end of chapter 12. आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के 9 से 20 पद तक पढ़ें। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया
तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। Someone said the following. किसी ने इस प्रकार से कहा, Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain. बाइबल की सच्चाइयाँ ढालदार और फिसलने वाले पहाड़ के समान हैं। One step away and you find yourself on the downgrade. एक कदम की दूरी पर आप अपने आप को निचले स्तर पर पाएंगे। I believe this with all my heart. मैं इस पर पूरे हृदय के साथ विश्वास करता हूँ। I believe it is true for individual Christians. मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह हरेक मसीही अनुयायी के लिए सच है, And I believe it is true for churches. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह कलीसियाओं के लिए भी सच है। Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history. अब्राहम परमेश्वर की इच्छा से सिर्फ एक कदम दूर गया और बाकी आप जानते हैं। Abraham did not go to Egypt right away. अब्राहम सीधे मिस्र देश में नहीं गया। No, नहीं, he went into the Negev first. सबसे पहले वह नेगब को गया। The Negev was only halfway to Egypt. नेगब मिस्र की आधी दूरी पर था। He probably thought to himself, I can always get back to Canaan. संभवत उसने अपने आप में सोचा होगा कि मैं हमेशा कनान देश में वापस जा सकता हूँ। But it wasn't long before he turned his back on his altar. लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसने अपनी पीठ वेदी की तरफ कर दी And folded his tent और अपने तंबू को समेटा and packed his bags और अपने सामानों को बांध लिया and left the place which God had chosen for him. और उस स्थान को छोड़ दिया जिसे परमेश्वर ने उसके लिए चुना था। In verse 10 it says there was a famine in the land. पद 10 कहता है कि वहां पर अकाल पड़ा। Abraham was hungry. अब्राहम अब भूखा था। After all, a man needs to eat. आखिर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है। Please listen to me carefully. कृपया मुझे ध्यानपूर्वक सुने। God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die. परमेश्वर ने अब्राहम को कनान में इसलिए जाने को नहीं कहा कि वह वहां मर जाए। I will give you the land to you and your descendants. परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वह देश दूंगा। In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem. दूसरे शब्दों में अब्राहम का भोजन और अब्राहम की समृद्धि परमेश्वर की समस्या है। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुने। Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God. बाइबल में मिस्र वह स्थान है जहां लोग परमेश्वर की इच्छा से भाग कर जाते थे। Egypt was the symbol of the flesh. मिस्र शारीरिक दशा का प्रतीक था। Egypt was a symbol that when you stop trusting in God and you trust in man. मिस्र वह प्रतीक था कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर मनुष्यों में भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। Egypt was a symbol of leaning upon your worldly wisdom instead of the Lord's wisdom. मिस्र सांसारिक ज्ञान पर निर्भर रहने वालों का एक प्रतिरूप था, जबकि लोगों को परमेश्वर के ज्ञान पर निर्भर होना चाहिए था। Egypt was a symbol of the chains and shackles of Satan and his bondage. मिस्र शैतान की जंजीरों, बेड़ियों और उसके दास्तव का प्रतिरूप था। So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience. अब यहाँ पर अब्राहम का मिस्र में जाना परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर अपने आप करना जैसी आज्ञाकारिता में आने को दिखाता है। What happens when you get out of the will of God? जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं तो क्या होता है?
you will find that continuing in sin becomes easy. आप पाएंगे कि निरंतर पाप करना आसान हो जाता है। I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God. मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको परमेश्वर की इच्छा से बाहर कर देती है। Fear. यह है डर। When Abraham was in the will of God, जब अब्राहम परमेश्वर की इच्छा में था, he came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites. वह कनान आया और उसने तुच्छ और क्रूर कनानियों को देखा। But that did not frazzle him one bit. लेकिन इससे उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। But he built an altar and pitched his tent. परंतु उसने एक वेदी बनाई और अपना तंबू खड़ा किया। But now that he's out of the will of God, लेकिन अब क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, he was fearful. वह भयभीत है। All he could think of was his own safety. अब वह सिर्फ अपनी ही सुरक्षा के बारे में सोच सकता था। Well, in those days, it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house. उन दिनों में यह प्रचलन था कि राजा फिरौन किसी भी स्त्री को जिसे वह चाहे अपने घर में ले जा सकता था। If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself. यदि स्त्री शादीशुदा है तो राजा उसके पति को मरवा देता था ताकि वह उसकी पत्नी को अपने लिए रख सके। And Abraham did not like this part about killing of the husband. और अब्राहम पति को मारने वाली इस बात को पसंद नहीं करता था। Sarah must have been a beautiful woman, संभवत सारा एक सुंदर स्त्री थी, even at the age of 65. बल्कि 65 वर्ष की उम्र में भी। And Abraham knew that. और अब्राहम ये जानता था, So he asked her to join him in the big lie. इसलिए उसने अपनी पत्नी को उस बड़े झूठ में शामिल होने के लिए कहा, Say that you are my sister, कहना कि तुम मेरी बहन हो, which is half truth because she was his half sister. जो कि आधा सही था क्योंकि वह उसकी आधी बहन थी। My listening friends, please listen to me very carefully. प्रिय श्रोता, कृपया आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। It is all the intention of the heart. ये सब मनुष्य के हृदय का विचार है। And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection. अब्राहम के धोखा देने का मकसद स्वयं को सुरक्षा प्रदान करना था। Some 1,800 years after Abraham, अब्राहम के लगभग 1800 साल बाद a husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles. एक पति और पत्नी हननिया और सफीरा ने प्रेरितों से झूठ बोला And they were struck dead on the spot. और वे वहीं पर गिरे और मर गए। Well, the immediate fruit of sin may not be visible. हो सकता है कि पाप का परिणाम तुरंत दिखाई न दे। And the Bible says that sin is pleasurable for a season. और बाइबल कहती है कि पाप थोड़े समय के लिए खुशी देने वाला होता है। Immediately, Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him. तुरंत अब्राहम को फिरौन की तरफ से धन दौलत और पशु उपहार स्वरूप दिए गए। But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment. लेकिन जब परमेश्वर बीच में आया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्राहम को लज्जित होना पड़ा। Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway. यद्यपि अब्राहम ने पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, फिर भी परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। In verse 17 it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household. पद 17 में लिखा है कि बहुत बड़ी महामारी फिरौन के घर पर आ पड़ी। Sarah's honor was preserved, सारा का आदर सुरक्षित रहा, despite of the selfish action of her husband. उसके पति के स्वार्थपूर्ण कार्य के बावजूद भी। In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit, मिस्र में अब्राहम शर्मिंदगी के दलदल में डूब गया and he was rebuked by a pagan Pharaoh. और वह अन्य जातीय फिरौन के द्वारा डांटा गया। Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them. यदि जीवन के शर्मनाक समयों को देखें तो उनमें से यह भी एक था। The friend of God is being rebuked by a pagan. परमेश्वर का मित्र एक अन्य जातीय व्यक्ति के द्वारा डांटा जा रहा है। What did this say about Abraham's testimony? ये अब्राहम की साक्षी के बारे में क्या कहता है? Listening friend, श्रोता मित्रों,
Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God, can live any way they want. मसीहियों में सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वे सोचते हैं कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए जैसा चाहें वैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin. वे सोचते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, इसलिए उन्हें पाप के बारे में सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance. आप में से कुछ लोग अपने धार्मिकता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि सही सुसमाचार और पश्चाताप के बारे में। Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender. आप में से कुछ लोग पूरी रीति से सुसमाचार की धार्मिक बातों में बंधे हुए हैं, ना कि सुसमाचार को समर्पित हैं। Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life. आप में से कुछ लोग समाज में आपका क्या स्थान है इसके बारे में सोच रहे हैं, ना कि पवित्रता के बारे में। And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this. और आज परमेश्वर अब्राहम की इस असफलता के द्वारा हमें जो कहना चाहता है वो है, Put your whole trust in me and I will direct your path. मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। You don't need to run into Egypt, तुम्हें मिस्र जाने की आवश्यकता नहीं है, for whoever wants to save his life will lose it. जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो इसे खो देगा, But whoever loses his life for me will find it. और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोता है वह इसे पाएगा। It is my prayer that you would say yes to Jesus. ये मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु को हाँ कहें। And until we meet